علیکم، میں ہوں سرفراز ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن میں فضیلت رمضان۔ آج میں پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہماری جو کو ہوسٹ زینب چودھری ہیں ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت ان کی خراب ہے، تو وہ آج اس پروگرام میں نہیں آ سکی، اس لیے میں آپ ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اور آج ہمارے جو مہمان یہاں موجود ہیں ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، ان کو دوبارہ ہم نے مدعو کیا ہے کیونکہ عوام کا بڑا اصرار تھا اس بات پر کہ ان کو بلایا جائے، اور ان سے کچھ سوالات ہیں جو میرے پاس آئے، میرے پاس SMS آئے، کچھ میسیجز آئے جو میں نے ان سے کرنے۔ تو سب سے پہلے میں تعارف آپ کو کراتے چلوں، ہمارے سینئر تجزیہ کار SK اظہار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے اس پروگرام میں۔ ہمارے جو اس سے پہلے بھی ایک پروگرام کے اندر میں نے حکیم صاحب کو بلایا تھا، حکیم عبدالرزاق صاحب موجود ہیں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اور ان کے ساتھ ایک چھوٹے معصوم سے بچے ہیں عرفان، وہ جو کہ حکمت سیکھ رہے ہیں اور حکمت کافی حد تک وہ اس میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں۔ تو حکیم عبدالرزاق کے یہ بڑے ہونہار شاگرد ہیں، آج ہم نے ان کو بھی یہاں بلایا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے، جس میں میں ایک مرتبہ پھر دعوت دوں گا SK اظہار صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل ربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ یہ SK اظہار صاحب نے تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کر دیا ہے، فضیلت رمضان کا پروگرام۔ SK اظہار صاحب سے میں مدعو ہوں گا۔ اظہار صاحب، فضیلت رمضان کے حوالے سے الحمدللہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور ماشاء اللہ سے روزے بھی ہمارے پورے جا رہے ہیں، اور اچھے روزے جا رہے ہیں، حالانکہ گرمی بھی ہے کراچی شہر کے اندر، لیکن شکر ہے اس پروردگار کا کہ روزے ہمارے مکمل جا رہے ہیں۔ فضیلت رمضان کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں سرفراز صاحب، فضیلت رمضان کا تو آپ نے اپنے گفتگو کا آغاز میں بات کہی دیا کہ شدت کی گرمی ہے، شدت کی گرمی ہے، شہر میں پانی کی قلت ہے، بالکل، سڑکیں ٹوٹی کھدی ہوئی ہیں، رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں، ان میں روزہ داروں کو بہت پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے۔ جی، بالخصوص مرد حضرات کو ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، وہ ان روزہ داروں کو کوئی گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں، کوئی اپنی بائک پہ، کوئی اپنے کار پہ سفر کرتے ہیں، وہ کہ جو بھی سفر میں لوگ ہوتے ہیں بہت تکلیف اٹھاتے ہیں وہ روزہ کے دن میں، خاص طور روزہ دار حضرات۔ تو یہی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اتنی رکاوٹوں کے باوجود، شدت کی گرمی کے باوجود، سڑکیں کھدی ہوئی ہیں، جو کم وقت میں راستہ طے کرنے کے بجائے گھر کے وہ گھنٹوں میں طے کرنے کے باوجود تھکاوٹ، پریشانی، پسینے، لیکن پیاس کی شدتیں لگ رہی ہوں گی انہیں، بھوک محسوس ہو رہے ہوں گے، لیکن رمضان کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ رمضان مبارک کی فضیلت رمضان میں اتنی بڑی فضیلت کی ہے کہ آپ کو جو بھوک محسوس ہو رہی ہے، جو آپ کو پیاس محسوس ہو رہا ہے، آپ کو یا آپ کو جو بھی تکالیف فیل کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اسے صبر کرنے کا حوصلہ اور ہمت دیتا ہے۔ یہ فضیلت رمضان۔ بالکل، SK اظہار صاحب نے بڑی اچھی بات کہی فضیلت رمضان کے حوالے سے کہ فضیلت رمضان کے اندر جس طریقے سے شدید گرمی ہے، اور گرمی کے ساتھ ساتھ ہمارے کراچی شہر کی روڈوں کی حالت بھی اتنی گندی گھٹیا قسم کی ہوئی ہے کہ لوگ بہت مشکل سے اپنے گھروں کو پہنچتے ہیں۔ بس یہ فضیلت رمضان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، روزہ ان کا مسلسل جا رہا ہوتا ہے۔ حکیم صاحب، یہ بتائیں کہ سحری میں ہم جب سحری کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھونا سالن کھائیں اور پراٹھے کھائیں، اس میں ہم پھینی، کھجلا پھینی وغیرہ، یہ بہت ساری چیزیں نئی سی نئی ڈشیں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم کھا تو لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ بدہضمی بھی ہو جاتی ہے، کچھ بیماریاں جو ہیں وہ لوگ پریشان ہونے شروع ہو جاتے ہیں اتنا کھانے کے بعد۔ تو اس کا کیا آپ محسوس سمجھتے ہیں کہ کھانا سحری کرنے کے بعد کیا چیز ایسی ہے جو کھا لی جائے تو وہ تکلیف تقریباً دور رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عرض یہ ہے کہ معدے کو سیٹ رکھنے کے لیے فوری طور کچی لسی کا تو بہترین نظام ہے، دہی کی لسی۔ دہی کی لسی، جتنی خشکی ہوتی ہے
وہ پتلی کر کے میٹھی کر کے یا بالکل نمکین ہو تو سب سے بیسٹ ہے. اگر کسی کو بلڈ پریشر ہو تو وہ نمکین تو نہیں، نمک ڈال کے تو نہیں پی سکتا؟ نمک نہ ڈالے، اسی طرح یہ پھیکے پی لے. ٹھیک ہی پی سکتے. وہ پتلی کر کے جیسے چائے کا گھونٹ ہوتا ہے وہ اسی طریقے پیے تو سارا دن کی خشکی ختم ہو جائے گی، اچھا. پیاس نہیں لگے گی. اور کسی کو ہچکی ہو جاتی ہے، رکنے نہیں آتی، جو یہی طریقہ استعمال کر لیں، بریک لسی کر کے دہی کی، نہ پانی ڈالیں نہ دودھ ڈالیں، اور کہوے کی طرح چائے کی طرح پئیں، چھوٹے چھوٹے گھونٹ کر کے. پیالہ ختم نہیں ہوگا یا گلاس ختم نہیں ہوگا، اس کی خشکی ختم ہو جائے گی اور ہچکی رک جائے گی، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، جو ڈاکٹروں سے بھی نہیں رک سکتی. یہ آپ نے اپنے حکمت بتایا. یعنی کہ یہ دہی اتنی خشکی ختم کرتی ہے. خشکی ختم کرتی ہے. لیکن اس کا قدرت کا نظام ایسا ہے، دودھ کا، دودھ تر گرم ہے، جب کھٹا لگا دو دہی فل گرم ہے، چیز ایک ہے. پھر اس کو رڑک لو، مکھن بھی ٹھنڈا ہے، لسی بھی ٹھنڈی ہے. پھر لسی جو ہے اس کو گرم کر کے 15 دن چاٹی والی لسی بندے کو پلا دے، جس کے جسم میں جتنا ہی درد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ آپ معدے کا علاج کرتے ہیں، اور پھکی جو ہے میں نے بھی استعمال کی آپ کی پھکی، اور ماشاءاللہ مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. میں بہت ممکن میری حالت تھی کہ میرا اپنا پیٹ بھی بہت زیادہ تھا، تو آج الحمدللہ بالکل سلم کر دیا حکیم صاحب نے. یہ ہمارے اچھے دوست بھی ہیں، بھائیوں کی طرح. تو معدے کے جلن اور اس میں اس کی چیز کو کلیئر کرنے کے لیے کیا استعمال کرنا چاہیے؟ پھکی تو ہوتی ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ پھکی کے اندر کیا ہوتا ہے، تو ذرا ناظرین کو بتائیں گے آپ کہ اس میں کیا چیز بناتے ہیں؟ نارمل پھکی بلڈ پریشر کے لیے یا گیس کے لیے چھوٹا سا ایک چٹکا دے دیتا ہوں. جو جس کے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو ڈاکٹر تو کہاں تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن ہمارے کاغذوں میں یہ چیز ہے: 1 پاؤ چینی، 1 پاؤ سونف، آدھی شٹانگ یا شٹانگ میٹھا سوڈا، مینتھول جس کو ست پودینہ کہتے ہیں، 1 تولہ. وہیں کھڑے کھڑے گرینڈ کر کے رکھ لیں. کسی کے پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے یا بلڈ پریشر آئی ہے، اس ٹائم کنٹرول کرے گی یہ چیز. جلن پہ بھی ختم، جلن ختم، بوجھ ختم، بلڈ پریشر اپنی جگہ پہ. سارا معدے کا ہی مسئلہ ہے، سارا معدے کا مسئلہ ہے. اصل چیز ہی معدہ ہے، اصل چیز میدا ہے، جس کو مشین یہ اصل مشین جو ہے وہ معدہ ہے. ہمارے کراچی میں آج کل یہ چل رہا ہے، چلتے چلتے بھوک کو ختم کرنے کے لیے سموسے پکوڑے پکڑ لیے، صحیح بات ہے، یا چاول پکڑ رہے ہو شاپر میں کھا رہے ہیں. نہ کھانے کی ادب ہو رہا ہے، نہ اسلام کے طریقے پہ چل رہے ہیں ہم. حکیم صاحب، ہم نے تو بہت کوشش کی اپنے ناظرین کو یہ چیز بتانے کی، اور آپ نے اس سے پہلے بھی پروگرام میں بیٹھے تھے. اس کے علاوہ آپ کے علاوہ بھی ہمارے ایک حکیم عسکری جو ہیں وہ آئے تھے یہاں پر، ڈاکٹر پروفیسر، انہوں نے بھی بہت ساری چیزیں ہم نے پوچھی تھی تو ناظرین کو بھی ہم نے بتائی تھی. تو ناظرین ہماری بات تو سن نہیں رہے ہیں کہ وہ کس چیز پر عمل کریں. آپ ہی کچھ ان کو بول دیں کہ جی اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اس کے استعمال کریں اور اس طریقے سے استعمال نہیں کریں. سب سے بیسٹ طریقہ تو میں یہی بتاؤں گا کہ جتنے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں وہ دہی کا زیادہ استعمال رکھیں نا صبح کے ٹائم، ان کو خشکی نہیں ہوگی. صحیح. کیونکہ بیسیکل ہمارا پانی خشک ہے، دریا کا پانی ہے. اس کو فلٹر کرنے کے لیے کیمیکلز، پھٹکڑی، چونا، ہائیڈروجن یہ ڈال کے اتنا ہی صاف کرتے ہیں اور خشک اتنا ہو جاتا ہے کہ جوڑوں کا درد نہیں ختم ہو رہا کراچی میں. ناظرین، آپ دیکھا آپ اور یہ سنا بھی آپ نے کہ حکیم صاحب نے آپ کو بڑی اچھا مشورہ دیا ہے، بہت قیمتی مشورہ ہے کہ جی دہی کا جو استعمال کا جو طریقہ کار بتایا ہے، اور آپ کو معدے کی تکلیف کے لیے پھکی کی لیے فوری طور پر جو انہوں نے چیزیں بتائی ہیں ان کو نوٹ کریں اور یہ اپنے اپنے گھروں میں رکھیں، استعمال کریں. انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. ایک شارٹ بریک کی طرف جا رہے ہیں، شارٹ بریک سے واپسی آتے ہیں، پھر ہم مزید تفصیلات ان سے بات کریں گے. ایک شارٹ بریک کے بعد. چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں بڑی بڑی خوشیاں، ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں ماما کی پوری دنیا.
बच्चों का पेट है उनकी मुट्ठी जितना, भर तो जाता है मगर ग़िज़ाइयत अधूरी रह जाती है। इसीलिए पाकिस्तान में हर चौथा बच्चा आयरन की कमी का शिकार है। क्या आपका बच्चा तो नहीं? नेस्ले सेरेलैक में है खालिस गंदम, चावल और फलों की खूबियाँ, आयरन और प्रोबायोटिक के साथ, यानी वो अहम अज्जा जिनकी आपके बच्चों को जरूरत है। तो आज नहीं, अभी अपने बच्चे से शुरू करें ताकि पाकिस्तान के हर नन्हे पेट को मिले बड़ी ग़िज़ाइयत। नेस्ले सेरेलैक, हर प्याले में ग़िज़ाइयत का एतमाद। ब्रेक से खुश आमदीद। हमारी बात हो रही थी हकीम साहब से और हकीम साहब ने बहुत अच्छे मुफीद मशवरे भी दिए हैं हमारे देखने वाले नाज़रीन को। अब हकीम साहब के शागिर्द हैं इरफान हकीम, जो कि छोटे से हैं, अभी सीख रहे हैं, तो इनकी तरफ जाते हैं। क्या हाल है इरफान आपके? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जोर से बोलें ताकि मुझे तो समझ में आए, जब मैं सुनूंगा तो नाज़रीन भी सुन पाएंगे। रोज़ा भी नहीं है। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप अभी सीख रहे हैं? जी मैं सीख रहा हूँ और काफ़ी हद तक सीख भी चुका हूँ। अच्छा, तो हकीम साहब ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से काम सिखा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें भी मैंने सीख ली है। अच्छा माशाल्लाह। यानी कि ये शौक कब से आपको पैदा हुआ? ये तकरीबन सन 2022 से हुआ मुझे। यानी कि 3 साल आपको हो गए, आपको ये शौक हुआ है कि मैं हकीम बनूं। जी। तो ये किसको देख कर हुआ है? ये मुझे यरकान था। अच्छा। तो मैं यहाँ काम की तलाश में आया था, तो मैं यहाँ बीमार हो गया तो फिर हकीम साहब ने मेरा इलाज किया। हकीम अब्दुल रज़ाक साहब ने? जी। अच्छा। तो फिर मैंने मेरे अब्बू ने बोला कि यार तू और कोई काम ना कर, बस इनके पास रह जा, काम भी हिकमत सीख और खिदमत खल्क कर। क्या बात है माशाल्लाह। ये जज्बा बड़ा अच्छा जज्बा है। हकीम साहब ये आपके शागिर्द हैं, आपके होनहार शागिर्द। अल्लाह की रहमत है कि ये 27 दिनों में हेपेटाइटिस ख़त्म हुआ, उसके बाद कोरोना हुआ, कोरोना जो है 17 दिनों में ख़त्म हुआ। जिगर काम नहीं कर रहा था, 8 पॉइंट खून था और माशाल्लाह उस ख़त्म होने के बाद 7 किलो वज़न भी बढ़ा है इसका। जब जिगर काम करे, मैदा रोटी हजम करे, जिगर खून बनाए, बलगम कोलेस्ट्रॉल ना बनाए, तो बंदा तंदुरुस्त होता है। सही बात है। बेसिकल उधारी चीज़ जैसे मेडिसिन खाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, शाम को खाते हैं सुबह तक, ये कोई इलाज तो नहीं है। वैसे ये हम जो मेडिसिन लेते हैं एलोपैथिक की, जो जितनी भी हमने मेडिसिन ली हैं, ये अक्सर लेते हैं हम लोग। अब मुझे बुखार हो जाता है, मैं बोलता हूँ, सब बोलते हैं कि भाई ये फला जाके टेबलेट ले लो, ये गोली ले लो, ये डॉक्टर के पास चले जाओ। वो डॉक्टर दे तो देते हैं, वक्ती तौर पे बुखार रुक तो जाता है, लेकिन वो वक्ती तौर पे रुकता है कि साहब ये मुस्तकिल बुनियाद पे नहीं रुकता। ठीक है सर, डॉक्टर अच्छे हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और अच्छे तरीके से चलने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अर्थ ये है कि फौरी तौर डॉक्टर का इलाज ये है, हमारा है स्लो इलाज, आराम से पक्का, लेकिन पायदार है। देखिए एक इमारत जब तोड़ते हैं, इमारत टूटने के बाद जब तक ऐरे तक खाली ना होगी तो नई बुनियाद अच्छी नहीं बनेगी। ये बनेगी। जो डॉक्टरी बीमारी है, बुखार का टीका लगाया, गोली लगाई, बुखार अंदर चला गया, वो बीमारी को दबा देते हैं, वक्ती फायदा हो जाता है उससे। हमारी दवाई बुखार की लेंगे तो 3 घंटे में तड़फा देगी, अंदर से बुखार निकालेगी। अच्छा। उसके बाद जोड़ों का दर्द खत्म और मैदा अपसेट नहीं होगा। अच्छा, ये तो इलाज साहब, ये हकीम साहब फरमा रहे हैं कि ये हमारी जो दवाई है वो पायदार एलोपैथ का है ना। हिकमत एक अलग चीज़ है। नहीं, बिल्कुल हकीम साहब ने सही फरमाया। देखिए इन्होंने इतनी उम्र गुजारी माशाल्लाह। और सबसे पहले तो मैं इनके अब्बू को, इरफान के अब्बू को सलाम पेश करना चाहूँगा। वो मौजूद नहीं है, लेकिन बच्चे ने कहा कि अब्बू ने ये तरबियत दी, अब्बू ने पाबंद किया, अब्बू ने हिदायत दी कि आप ये हकीमत काम सीख के अब्दुल रज़ाक साहब से आप यही काम करो, लोगों की खिदमत करो। ये बड़ा पॉइंट है। ये बड़ा पॉइंट है। नहीं कहा कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो या कोई और काम करो, मजदूरी करो, कुछ और करो। उन्होंने कहा कि हिकमत
उनको हकीम साहब से तुम्हें फैज़ मिला है, शिफा अल्लाह ताला देने वाला है, लेकिन हकीम साहब के जो नक्शे कदम हिकमत पर, में हाँ, उनके नक्शे नक्श कदम में चलोगे तो जो हकीम साहब का जो मुकाम है, जो रुतबा है, जो हाथ में अल्लाह ने शिफा दी है, वो इंशाल्लाह तुम्हारे भी कम उम्र भी है, जब इस उम्र को आओगे तो बहुत माहिर मुमकिन उस्ताद से भी तुम हाथ आगे निकल जाओ। अब ये है कि तालीम में अच्छा बच्चा जा रहा है। हम माशाल्लाह जिसके खलीफा हैं, खिलाफत मिली है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है वो गौसिया कॉलेज, शमदानी बाबा अबू साले चमन, वो हमारे बाबा हैं जी। हम उनके खलीफा भी हैं, बेटे भी बनाए उन्होंने, अल्लाह की रहमत से उनका हाथ हमारे ऊपर है। तो अभी वो कहाँ हैं शमदानी बाबा? शमदानी बाबा इंशाल्लाह माह रमज़ान के बाद आ रहे हैं। माह रमज़ान के बाद क्यों आ रहे हैं? आप उनको बुलाएं, हम उनको अपने प्रोग्राम में बिठाएंगे इंशाल्लाह एज ए गेस्ट। और 2 कॉलेज हैं उनके, माशाल्लाह। एक गौसिया कॉलेज जो एक होमियो है, जी, एक यूनानी है, माशाल्लाह। दोनों हैं। अच्छा, हकीम साहब ने एक बात निशानदेही की हमारे नाजरीन के लिए, लेकिन नाजरीन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन अमल करना पड़ेगा। अमल करना वो पड़ेगा। कोई भी डॉक्टर हो या हकीम हो, अगर मैं पेशेंट हूँ, इन्होंने मुझे एडवाइस किया है, नसीहत की है कि इजहार साहब आपको ये बीमारी लाहक है, तो आपको ये दवाई दे रहा हूँ, पाबंदी से वक्त खाना आपने, ये फक्की लेनी है आपने, आप इस चीज़ से खाने से अवॉइड करनी है, एहतियात करना जिसे कहते हैं। अब मैं एहतियात भी ना करूँ, मैं दवाई भी ले रहा हूँ, तो फिर वो चीज़ सूट नहीं करती। सही। तो हकीम साहब का कहना मकसद है कि जो चीज़ मैं बना के आपको दे रहा हूँ उस पर अमल करें, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह जो मैं हिकमत की चीज़ है, जो आम डॉक्टर्स देते हैं वो 6 दिन में सही होता है, 6 दिन में सही होता है, तो वो मेरे 12 दिन के बाद वो हमारी चीज़ असर करेगी, लेकिन वो पायदार होगा, वो हमेशा के लिए होगा। हकीम इरफान, क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि आप किसके नक्शे कदम पर चलेंगे? आप? मैं सर यही चाहता हूँ कि मैं हिकमत के नक्शे कदम पे चलूँ, और ये बुजुर्गों का शिवा है। हज़रत हकीम लुकमान हिकमत के बादशाह थे, माशाल्लाह। जड़ी बूटियाँ उनसे बात करती थी। तो जब मैं बीमार हुआ तो तकरीबन कोई 25-30 हज़ार रुपया मेरे ऊपर लग गया, तकरीबन 8 दिन की दवाई दी थी उन्होंने। तो मैं इनके पास आया, तो मैं दूध की दुकान पे काम करता था, तो इन्होंने मुझे दवाई दी, तो मुझे फ़र्क महसूस होने लगा। तो फिर मैंने इनसे बात की और इन्होंने मुझे काम पे रखा। तो फिर अल्लाह का शुक्र है 2-2.5 साल हो गए हैं मैं इनके पास काम कर रहा हूँ, और अब तक मुझे ना कोई बीमार हुआ है, ना और कोई बीमारी लाक है। अच्छा सर, इसी उम्र में अभी ये मैंने बताया है, इन्होंने दिल की दवाई बनाई है, अच्छा। अपनी हमशीरा को दी है, जिसकी अमाउंट डॉक्टर की थी 4.5 लाख रुपए। अल्लाह अकबर। 2 महीने दवाई खाने के बाद बिल्कुल क्लियर हो गई है। माशाल्लाह, क्या बात है। देखिए सर, कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो दबा के खौफ देकर वो पैसा निकालते हैं डॉक्टर। जैसे कहते हैं कि दिल में सुराख है, दिल में सुराख है तो ब्लड कहाँ जाए? ब्लड का काम है दिल में रुकना। जो अगर सुराख है तो ब्लड तो बाहर निकलेगा, वो कहाँ है? ये एक बहाना है पैसे लेने का। 15 दिनों की दवाई में दिल का सुराख ठीक हो जाएगा और उसका सांस नहीं फूलेगा और सेहत से सेहतमंद होगा। तो जब वो सुराख है ही नहीं, तो वो आप बोल रहे हैं कि वो सही हो जाएगा, वो कैसे सही होगा? उसके ऊपर एक छोटा सा जख्म बन जाता है। अच्छा। जैसे एक्सरे में दिखाते हैं, वो निशान धब्बा आ जाता है, निशान आ जाता है, वो उसको सुराख बना के दिखा देते हैं। डॉक्टर ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है हकीम साहब ने इस हवाले से कि जो दिल में सुराख का बोलते हैं कि जी दिल में इसके सुराख है और इसका ऑपरेशन होगा और इसमें लाखों रुपए खर्च होंगे, तो दिल के अंदर हमारा जो ब्लड है, जो खून है, वो जाके दिल के अंदर रुकता है। जी। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, देखिए इन्होंने जो ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, जो निशानदेही की है कि स्पॉट्स है हल्का सा, डॉक्टर्स को क्या नाम दिया? सुराख। पेशेंट घबरा गया, जो अटेंडेंट उनके जो अटेंडेंट का है, उनके घर वाले, वो ज़्यादा परेशान हो गए, बच्चे सुराख हो गया। तो मैं ऐसे डॉक्टर साहब से कहूँगा कि खुदारा अपने रिस्क के हलाल को हसूल बनाएं, और आप फिर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप डॉक्टर नहीं, आप डॉक्टर कहलाएंगे। बिल्कुल, ये वो डॉक्टर हैं जो जिनको अपनी ज़बान में कि चाली डॉक्टर, अताई डॉक्टर, ये इस तरह के डॉक्टर जो हैं वो ज़्यादा वबा फैलाते हैं और ज़्यादा लोगों को पैनिक फैलाते हैं पेशेंट को।
अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, जो अच्छे सर्जन हैं, वो अल्लाह का शुक्र वो तो मरीज मरने वाला भी होता है तो अब कार्डियो का ही ले लें आप, कार्डियो में जितने बड़े बड़े सर्जन बैठे हैं, तो वहाँ अगर किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम होती है तो 1 मिनट लगाते हैं, वो उसको बिल्कुल लगा के मशीनें लगा के फुल उनका चेकअप करते हैं, डॉक्टर सर्जन जो है मेन आके खड़ा भी हो जाता है वहाँ पर। ऐसा ही है। तो वो अच्छे भी हैं, लेकिन ये अताई डॉक्टर हैं, ये जाली डॉक्टर हैं, जिन्होंने ये सिस्टम को जो है ना खराब किया हुआ है और हमारे माहौल और डॉक्टर्स को बदनाम किया हुए। जिसे कहते हैं हकीम साहब कि एक मछली सारे तरह को गंद करती है, वन फिश स्पेल द होल ट्रंक, जिस इंग्लिश में कहते हैं। माशाल्लाह जी, उनका पेशा भी एक इंसानियत की खिदमत करना है, हमारा भी। लेकिन कलाम पाक में वादे तौर पे अल्लाह की ज़ात फरमा रहा है, यासीन यासीन वल कुरानुल हकीम, के हिकमत का भरा हुआ है, हमारी समझने की जरूरत है। कुरान हकीम हिकमत से भरा हुआ कुरान है, इसको देखो, तर्जुमा पढ़ो, देखो, उसमें ही सारी चीज़ रखी हुई। आपका हयात है ना कुरान, जी जी बेशक हयात है, सब चीज़ और हयात रहेगा, क़यामत रहेगा इंशाअल्लाह। दुनिया में देखें, पित्ते की पथरी का लोग कहते हैं इलाज नहीं, लेकिन अल्लाह की रहमत से 2 से 3 महीने में पित्ते की पथरी ख़त्म हो जाएगी और पित्ता दोबारा अपना काम करेगा। अच्छा, एक सवाल आपसे है, बचपन से अब तक मैं सुनता चला आ रहा हूँ, मुझे कहते हैं काली मिर्च नहीं, काली नहीं, वो काली क्या वो अपना कलवंजी कि कलवंजी में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कलवंजी में मौत के अलावा सब चीज़ का शिफा इलाज है। सर कुरान के, आपकी बात काट रहा हूँ, 5 नुस्खे हैं कुरान के, दुनिया 5 में चल रही है। अच्छा, ये वो एक फकीरी लाइन है, ये हाथ है 5, ये क्या बन गया? अल्लाह, ठीक है। फिर ये क्या आ गया? 5, वो फिर ऊपर चले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, या अल्लाह पंचतन पाक 14 मासूम। फैसला तो आपके हाथ में अल्लाह ने दे दिया। नुस्खे भी कुरान के 5 ही हैं। मौत के अलावा पूरे जिस्म पे काम करने वाली कलवंजी है। दूसरे नंबर पे जैतून है, जो पूरी आयात है जैतून पे। 3 जैतून, हाँ सही है, बादल बदल अमीन। तीसरे नंबर पे शहद है, हाँ। वल्ला रब की ज़ात कह रही है, वल्लोलो मरजान वबैयत तो गज़बान। लोलो कहते हैं सच्चे मोती को, शाख मरजान समंदर में होती है। देखो अल्लाह ने एक लकड़ बना दी, एक मिस्त्री का काम करा, जैन टेबल बना दी, किसी ने चारपाई बना ली, किसी ने दरवाज़ा बना लिया, किसी अच्छी कारीगर ने हाथ लगाया तो एक विक्टोरिया सेट बना दिया जो लाखों का बिकता है। लकड़ वही होती है, निस्बत। इसी तरह दूध की निस्बत है, दूध ताज गर्म है, खट्टा लगा तो दही फुल गर्म है। फिर दूध को रिड़क लो, मक्खन भी ठंडा, लस्सी भी ठंडी। मकसद ऐसे रगड़ दो, यानी कि चाटी में मक्खन निकल जाता है, मक्खन भी ठंडा, लस्सी भी ठंडी। फिर मक्खन को ना कुछ डालो ना निकालो, गरम कर लो, फिर घी गरम है। मतलब बेस क्या है? दूध है, दूध से कई अक़साम को कई चीज़ें बनती हैं, कितनी चीज़ें बनती और चीज़ें बनती हैं। और ये हमारे रमज़ानों में भी खुसूसी तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है ये सारी चीज़ें जो आप दही का इस्तेमाल बता रहे हैं, आप दूध का इस्तेमाल बता रहे हैं, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें इलाज साहब चलता है। हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। आज हमारी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई हकीम साहब से, और बड़ी अच्छे मुफीद मशवरे भी उन्होंने दिए, और आप नाजरीन को भी हकीम अब्दुल रज़ाक साहब ने बताया कि जो किस तरीके से मैदे की तकलीफ दूर होती है, किस तरीके से रोज़ा रखें, खा रहे हैं आप, खुराक जो भी सहरी हम कर रहे हैं, उसके बाद क्या चीज़ लें, तो वो सारी चीज़ें। आप इजाज़त से सरफराज साहब प्रोग्राम को तो एंड हो रहे हैं, इख्तिताम पे आपके इजाज़त से मैं नाज़रीन से एक बात ये भी कहना चाहूँगा, बल्कि रिक्वेस्ट करूँगा और उनके नॉलेज में इजाफा करना चाहूँगा, उनको एतमाद दिलाना चाहूँगा कि आप एतमाद करें, आप मिसगाइड ना हों। कि कुछ लोगों ने आदत बना ली है, एक मतलब कि नेचर सी बना ली है कि जो डॉक्टर हो या हकीम हो, जो ज़्यादा पैसा लेगा, चार्ज करेगा, समझते बहुत बड़ा डॉक्टर हुआ है, बहुत बड़ा वो मुकाबिल अब भाई डॉक्टर वो है, बहुत बड़ा हकीम है। और जो इंसानियत की खिदमत के नाते खौफ खुदा रखने वाला, वो लोगों को परेशान हाल देखते हुए उन्होंने एक माकूल सा रकम रखी है इलाज मौलजा के लिए, तो उसको लोग लिफ्ट कराते हैं, उसको लोग अहमियत नहीं देते हैं। वो कि उससे ज़्यादा करामत
कारगर साबित हो रहे हकीम साहब, ऐसे। हकीम अब्दुल रज़ाक हो या कोई और भी हकीम हो, पाए के चोटी के हो, लेकिन उन्होंने फीस कम रखी है तो उन्होंने हल्का लिया हुआ है, उनके बाद रुजू नहीं करते। यार वो क्या मामूली असल में ये हमारे ज़हन बन चुका रिवाज बन चुका है। मैं नाज़रीन से कहूँगा या इसको हम थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं, हमारे बच्चे हैं खरीदारी के लिए, आप जुम्मा बाजार जाएंगे वही कपड़ा मिलेगा जो हिजरी में मिल रहा है आपको, बस सिर्फ पैसों का फर्क आएगा। जुम्मा बाजार में 500 रुपए का वो ठिया लेकर 500 रुपए निकालने लोगों से, यहाँ 50,000 रुपए लेकर वो बड़ी मार्केट के अंदर वो 50,000 रुपए निकाले, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रही है, निकालेंगे वो कसरत से निकाल लेंगे। यहाँ बड़ा हकीम किसको बोलते हैं? जिसकी बड़ी दुकान, शीशा लगा हो, कार्टन पहन के बैठा, शोशाबान। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस गरीबी में हालत में भी मैं ज़कात की दवाई फ्री देता हूँ फितरे की। क्या बात है। जो अगर झूठ बोलेगा खुदा को जवाब उसने देना है, मैंने नहीं देना। बिल्कुल सही बात है। नाज़रीन, अब हम प्रोग्राम का वक्त हम ख़त्म हुआ जा रहा है और क्योंकि सहरी की बिल्कुल तैयारी नज़दीक पहुंच चुकी है और हमें भी सहरी करनी है और भूख भी आज ज़्यादा लग रही है क्योंकि अफ्तारी की है हमने, रोज़ा खोलने के बाद हमने खाना नहीं खाया था खाना खाने का। तो अब अपने होस्ट सरफराज सागर और हमारे मेहमान इसके इजहार और हकीम अब्दुल रज़ाक और छोटे हकीम इरफान को अब इजाज़त दीजिए। तमाम दोस्तों से और तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि आप सहरी के वक्त जो बातें खाना खाते वक्त जो बातें हकीम साहब ने बताई हैं उस पर अमल ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। जंगल में मंगल का समा था। एक हाथी की सालगिरह थी। खरगोश ने मजे का केक बनाया। शेर बड़ा सा तोहफा लाया। मछली ने जो गुब्बारा फुलाया, तब भालू ने सबको डांच दिखाया। गंदम, दूध और मक्खन से बना, प्रीबायोटिक्स की हिफाजत और कैल्शियम से भरा। इंट्रोड्यूसिंग ग्लूकोज जूनियर्स। खेलते जाओ, सीखते जाओ।